record this. Okay. So let us talk about the force method. Force method is also called flexibility method. Okay. And this method is actually used to find the stresses of indeterminate beam. Okay. So let this method is used for the indeterminate structures. So first of all, you have to understand the key concept of the force method. So, for example, let me start from the very basic example. So this is your beam, and this is your beam, and this is the length of the beam, and this is the load. Okay, either this is the load. Now, first of all, you have to determine that either the beam is indeterminate or not. Okay, so for example, if we see this beam, so we can easily find out that this beam is indeterminate beam. Okay, how can we find that the structure is indeterminate or not? This is fixed, so it has the three reaction, and this is ruler, so it has a one reaction. Okay, so this structure is and the number of reactions are four, and number of equations of equilibriums are three. So the structure is 1 degree indeterminate. Okay. Uh, Also, must remember that, for example, this is the beam, and this is your hinge. Okay, for example, this is hinge, and don't say that this is, for example, hinge also have a two supports. But in this type of structures, there is no horizontal load, so you don't need to consider this force. Okay, so either this has a hinge or roller, so it has only one reaction. Okay, because there is no horizontal force. So this beam is actually is indeterminate beam of 1 degree indeterminacy. Okay, so first of all, in force method, the first step is to find the degree of indeterminacy in your beam. So the degree of indeterminacy in this beam is actually 1. Okay, so this is your first step. Okay, so for example, this is your beam. Okay, and this is your beam. Okay, so again, this is degree of indeterminacy. Okay, so in this structure, the degree of indeterminacy is 3. Okay, the degree of indeterminacy is 3 because there is 1, 2, or 3. But in force method, as I already told to you, that there is no horizontal force. So you can say that there is no a need of this reaction. So you can say that in force method, if you are dealing with the force method, the degree of indeterminacy is 2. Okay, but in actually there is 3. But in the force method, because there is no horizontal force, so you can say that the degree of indeterminacy for this sort of problems are 2. Okay, so the first step in force method is actually finding the degree of indeterminacy. Okay, so I'm just talking about the beam, I'm not talking about the frame. Okay, so the first step is to find the degree of indeterminacy. But normally in exams and in questions, this type of questions are given in the exams. Okay, this. Okay, which has only 1 degree of indeterminacy. Okay, so this is your first. Um, for my exam, right, it has stresses for flexibility method. All the questions for flexibility method have stresses. There are no beams or I think frames. I think there is also beams. Can you see the lectures again? I have seen that. Yeah, that's the tutorial. But if you look at the question paper, it's always truss. Okay, it's truss. Okay, so you can Like the start. first two examples, if you see in the Okay, I get tutorial that it. I sent, Okay. and we have to use the virtual work method to Okay. basically I use think the equation. I think then we should start from the flexible slope deflection method, because beams are little bit easy, and trusses Okay. is little bit long.
So might be I will see the already solved example and I will just try to explain you with the help of solved example, because if I solve you step by step of the slope deflect force method to find the stresses in truss, it takes too much time. Okay, so How much time do you have today? actually, I'm a little bit ill and I can't speak too much because I have a bad throat. So I just have a 1 hour, and after that I have to go somewhere. And might be after 4 hours or 5 hours I will be free. Can say that after 5 hours, Uh, 5 to 6 hours I can be free. 5 to 6 hours. So it's basically going to be um a bit late here, but I don't mind that. It's all right. If you're free and I'm free too, we can have another meeting. But Okay. I need to finish these four topics basically by tomorrow night. I think, well, it depends on you. I can try to explain you all these topics, but I think Mm-hmm. for the better understanding, it is much better for you to first understand the flexibility method for slope deflection method to Mm-hmm. solve the beams. So if you can understand the beams, so then you can understand the trusses. Yes, sorry about that. Um, So right, so you, I think let's start about from the slope deflection method. What do you say? um, Or you can, if you want to start from the, you can say if you want to learn the truss, so we can start the truss. I think, yeah, because the thing is, I've looked a bit into the flexibility method yesterday, but I didn't get the chance to look at the slope deflection. Okay. So we can either do maybe yield line analysis or flexibility method, whichever Uh, is better. okay. So I think then let's start the flexibility method. Okay. 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 So now, for example, let us uh, add another page. Okay. So for example, let us talk about the um, let us talk about the truss. Okay. So for example, if this is your truss, सर आपका नया पेज ही नजर आ रहा है पुराना नहीं बीम्स वाला नहीं नजर आ रहा। अच्छा, ये अब आपको कौन सा नजर आ रहा है, पुराना या नया? अभी आपका वो एरो नजर आ रहा है लेकिन पेज पुराना ही है और यहाँ पे आपको ट्रस्ट नजर आ रही है? नहीं बस अच्छा एक सेकंड हाँ ठीक है मैं नेविगेट कर सकता हूँ अब आप देखें, सेकंड पेज पे आ सकते हैं। अब देखें। अ, ढूंढ रहा हूँ इसी का ये तो, ये देखिए सेकंड पेज पे नहीं, आपको नजर नहीं आ रहा सेकंड पेज? नहीं आ रहा सेकंड पेज में वो मैं भी करूँगा तो फिर आपको सेकंड पेज फिर का प्रॉब्लम होगा। अब आपको कौन सा पेज, इससे पेज वन नजर आ रहा है? हाँ अभी एम्प्टी पेज है एम्प्टी पेज है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं पेज टू ऐड करता हूँ, तो ये आपको पेज टू नजर आ रहा है, वन प्रोसेस फॉलोइंग। नहीं पेज टू नजर नहीं आ रहा एक सेकंड हाँ एक सेकंड हाँ पेज टू अभी नजर आ रहा है जी या पेज टू भी नजर आ रहा है? हाँ जी पेज टू भी नजर आ रहा चलें फिर मैं पेज वन से स्टार्ट करता हूँ। है ओके अच्छा, मैंने समझा आप अरबी हैं, वो इसीलिए मैं इंग्लिश में बता रहा था। उर्दू में अगर आपको समझ आ रही है तो उर्दू में स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ उर्दू में से स्टार्ट कर लेते हैं अगर उर्दू इज फेमस है ठीक है।
अच्छा, अगर हम बात करें ना ये ट्रस्ट की, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारी जी ट्रस्ट है, और कोई भी नाम दे दें, A B C D E, और ये हमारे पास फोर्स लगी हुई है, और ये हमारे पास रिएक्शंस हैं। अच्छा, आपने जब ट्रस्ट को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी देखनी है, ठीक है। चाहे वो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड हो या फोर्स मेथड हो, कोई भी मेथड हो, जी। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी कितनी है। हाँ, लेकिन जो हमारे ट्रस्ट होती है उसके अंदर जो डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी होती है वो दो किस्म की होती है, ठीक है। एक होती है इंटरनल इंडिटर्मिनेसी, एक होती है एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी, ठीक है। इंटरनल इंडिटर्मिनेसी का मतलब ये है कि क्या उसके मेंबर ज्यादा तो नहीं होंगे, और एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी का मतलब है उसके नंबर ऑफ रिएक्शन ज्यादा तो नहीं होंगे। तो यूजुअली एग्जाम्स के अंदर जो हमारी ट्रसेस आती हैं वो इंटरनल इंडिटर्मिनेसी की आती है, एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी की नहीं आती, ठीक है। तो सबसे एग्जांपल के हम्म। तौर पे मैं अगर इस ट्रस्ट की इस इसकी बात करूं, इस ट्रस्ट सिस्टम की बात करूं, तो इस ट्रस्ट में अगर आपने सबसे पहले देखना है कि नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं, तो ये कितने हैं, एक ये हो गया हिंज, एक ये हो गया, एक ये हो गया दो, और ये अगर तीन, तो इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नली ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट ही है, ठीक है। अगर दोनों हिंज होते तो ये हमारे पास एक डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी हो जाती। लेकिन अब एक हिंज है और एक रोलर है, तो मतलब इसका ये है कि ये स्ट्रक्चर हमारा डिटर्मिनेट ही है, ठीक है। इसका मतलब ये एक्सटर्नली तो इंडिटर्मिनेट नहीं है। अच्छा, सेकेंडली हम ये देखते हैं कि इसके नंबर ऑफ रिएक्शंस, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, तो उसका हमारे पास फार्मूला है M+R = 2J, ठीक है। तो सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मेंबर्स गिनने हैं। तो वैसे बाय एक्सपीरियंस देखने में मुझे पता चल जाता है, अगर आप भी पांच छह एग्जांपल सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी है, यानी ये वाला मेंबर ज्यादा है, ये वाला मेंबर ज्यादा है, ये वाला। तो बहरहाल आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर लो, तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और रिएक्शंस कितनी हैं, तीन। ज्वाइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 8 और 3 11, 5 दूनी 10। तो आपका जो डिटर्मिनेसी है वो कितनी है, एक डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी है, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो एक डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसमें से किसी भी एक मेंबर को, ठीक है, वो रिमूव कर देना है, क्योंकि ये फोर्स मेथड का उसूल है, ठीक है। चाहे वो बीम हो या फ्रेम हो, या तो जो इंडिटर्मिनेसी होती है उसने आपने इसको रिमूव करना है, ठीक है। लेकिन ट्रस्ट में थोड़ा सा सर डिफरेंट होता है। सर एक क्वेश्चन, आपने शुरू में बोला था भाई तीन रिएक्शंस हैं, सो डिटर्मिनेट होगा, वो कैसे पता चला आपको? देखें, नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स कितनी है, तीन, अच्छा अच्छा, ओके, मेक सेंस। ठीक है। जी। तो अब आपने क्या करना है कि इस ट्रस्ट को दोबारा, मैंने अब इस ट्रस्ट के अंदर से आपने एक मेंबर को पहले रिमूव करना है, ठीक है। अब आपने रिमूव करना कैसे है, ये फोर्स मेथड का उसूल है कि आपने उसको हम्म। रिमूव ऐसे करना है कि उसकी स्टेबिलिटी खराब ना हो, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे ओके। कहता हूँ कि लेट्स सपोज ये हमारा ट्रस्ट था, ठीक है। अब आपने एक ये एक रिएक्शन है और एक ये रिएक्शन है। अब आपने सबसे पहले एक मेंबर को रिमूव करना है, तो ऐसे रिमूव करना है कि इसकी स्टेबिलिटी खराब ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये मेंबर रिमूव करेंगे तो आप, एक इंजीनियरिंग सेंस कहती है कि अगर मैं इस ये लोड लग रहा है, इस मेंबर को रिमूव करूंगा तो मेरा स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। मेरा स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा ना, ये बन जाएगा। तो इधर इधर मैं लोड लगाऊंगा तो ये मेरा पूरा मेंबर ही उखड़ जाएगा। तो इसी तरह मैं इस मेंबर को भी रिमूव कर सकता, ठीक है। मैं इस मेंबर को भी रिमूव नहीं कर सकता, मैं इसको भी नहीं रिमूव कर सकता, मैं इसको भी रिमूव नहीं कर सकता, मैं इसको भी रिमूव नहीं कर सकता। मैं या तो इसको रिमूव करूंगा या तो इसको रिमूव करूंगा, ठीक है। तो इससे स्टेबिलिटी खराब नहीं होगी। मेरी आप बात समझेंगे तो जी। 12-15 ट्रसेस देखें ऑनलाइन,
इंटरनेट पे भी, तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा मेंबर मैं रिमूव करूंगा तो उससे हमारी डिटर्मिनेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। तो सबसे पहले आपने डिग्री ऑफ डिटर्मिनेसी कैलकुलेट की, विच इज द वन। सेकंड, यू हैव टू फाइंड द क्रिटिकल मेंबर, जो कि अगर हम मेंबर निकाल दें तो उससे हमारी डिटर्मिनेसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तो आपने वो रिमूव कर देना है मेंबर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, इस वाले को, ठीक है। BC रिमूव कर रहे हैं हम। बीसी को रिमूव कर दिया, ठीक है। अच्छा, हम AD रिमूव कर लेते हैं क्योंकि वो एग्जाम्पल से काफी सिमिलर हो जाएगा। ठीक ठीक है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। ये जी अरेजर की तरह, इसकी अरेजर, ठीक है। आप कहना चाह रहे हैं कि ये इसको रिमूव करना है, um, एक सेकेंड। AD वाला जो मेंबर है जी। इस ये वाला रिमूव करना है, इसको लगा रहने दो, इसको रिमूव कर दो। तो एक सेकेंड, मुझे एग्जांपल देखने दे भी उसमें क्या किया है इन्होंने, एक ताकि मिनट, अगर मैं बाद में भी चेक करता हूँ थोड़ा सिमिलर हो। आई थिंक इन्होंने ना सॉल्व नहीं किया हुआ इस। कटिंग द मेंबर AD। हाँ सही है, आपने वही रिमूव किया था। एडी, AD रिमूव किया था। एडी, तो एडी कौन सा था? एडी, ये वाला AD। रिमूव किया, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इन्होंने ना लेंथ को जो है ना वो सिंपल एल रखा हुआ है, तो वो अगर आप सिंपल लेंथ को एल रखोगे तो आपके लिए माइट भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। वैसे पेपर में इस तरह नहीं आएगा कि लेंथ वो प्रॉपर वैल्यूज गिवन होगी। फॉर एग्जांपल मैं इस um, इस इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, फर्स्ट एग्जांपल थी, हम्म, वो एग्जैक्टली exactly हमारा एग्जाम क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है, हाँ जी। जी जी ठीक है। उस अच्छा तो इसमें इसमें इसी तरह से आते हैं। अच्छा ठीक है, तो इसको हम एल ही रखते हैं, ठीक है। जी। ठीक है, इसको हम एल रखते हैं। एक मिनट, इसमें इन्होंने कहा, क्या कहा हुआ, ए ई। अच्छा, जब ए ई और एल रखेंगे, ये थोड़ा सा ना चलें इसको एल रख लेते हैं। ये भी एल है, ये भी एल है, और ये भी एल है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सिंपल उसी मेथड से सॉल्व करना है जैसे हम सॉल्व करते हैं मेथड ऑफ जॉइंट को, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर ये बात करता हूँ कि ये हमारा स्ट्रक्चर था, ठीक है, और ये 5 किलो न्यूटन है, और ये ऐसे है, ये ऐसे है। अच्छा, इससे हम दोनों ये सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और अगर मैं इसके इससे इससे ये दोनों सॉल्व कर लूँगा, ये आ जाएगी, इससे मैं ये दोनों सॉल्व कर लूँगा। अच्छा, अच्छा, सम टाइम पता है क्या होता है, जब हम मतलब कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें रिएक्शन सॉल्व करने पड़ते हैं, लेकिन सम टाइम हमें रिएक्शन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट मेथड ज्वाइंट पे भी जा सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको ही बताने लगा था। देखिए, अ, जब भी आपने ट्रस्ट को सॉल्व करना है ना, तो किसी भी एक ट्रस्ट पे ना तीन अननाउन्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। दो अननाउन होंगे ना तो वो मेथड वो ज्वाइंट खुद ही हल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इस ज्वाइंट फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो मैं नाम दे देता हूँ ना, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब मैं ई के थ्रू ना इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूँ, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा। फिर मैं डी पे आ जाऊंगा, तो चूंकि तीन मेंबर हैं, लेकिन ये तो सॉल्व हो जाएगा इसकी मदद से, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा। फिर ये सॉल्व होगा, ये हो गया, तो ये दोनों भी सॉल्व हो जाएंगे, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि हमें रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं है इस सिस्टम में, ठीक है। तो ठीक है। हम डायरेक्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे आपने पहले देखना है कि क्या सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इसमें सॉल्व हो सकता है, तो सबसे पहले हम लेते हैं जॉइंट ई। तो सिंपल वही तरीकाकार है जो हम इस्तेमाल करते रहे हैं उसमें, ठीक है। ये हमारे पास अगर ये एल है तो ये एल है, तो ये आई थिंक 45 डिग्री ही होगा, ठीक है।
तो जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने समीशन ऑफ ऑल द एफ वाई लेना है। ठीक है, ये आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा कि ये बेसिक है। हाँ जी। ये साइन 45 हो गया, ये ऊपर था, ये नीचे हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। तो एफ डी ई कितना हो जाएगा, मैं कैलकुलेटर भी निकाल लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 5√2। और मैं देखता हूँ इसमें इसने क्या लिया हुआ है, ताकि मैं उसी के लिहाज से लूँ ना वैल्यू। ऐसे 7.07 भी आ सकती है। 5√2 डी ई डी, अच्छा 5√2, ठीक है। ठीक है, 5√2 ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये पॉजिटिव में है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये वैल्यूज याद रखनी है। इसी तरह हमने समीशन ऑफ ऑल द एफ एक्स किया, तो क्या आ जाएगा, माइनस एफ डी ई माइनस एफ बी ई बी बी ई कॉस 45 इक्वल टू 0। तो माइनस एफ डी ई माइनस एफ बी ई डी ई की एफ डी ई, और एफ बी ई आई थिंक बी ई था, बी ई बी ई बी ई बी ई बी ई। ये आपको समझ आ रही है ना, ये सिंपल सॉल्व है। हाँ जी। बी, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं डी लिखा हुआ। बी बी ई, तो बी ई, बी, ओके। और ये कॉस 45, इसको दोबारा कॉस 45 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आई थिंक 5 आ जाएगा। 5 आ गया, ठीक है। और 5 नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो एफ डी ई कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। और ये नेगेटिव में आ जाएगा। ये आपको एक समझ आ रही है। सेकंड। सो बेसिकली हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स लेने हैं एफबीई के, जी, और वो हमें मिले हैं। क्या ये 5√2 हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? ये वर्टिकल है, पहला तो वर्टिकल होगा ना। देखिए, वर्टिकल सॉल्व करेंगे तो हाँ बी जी। सॉल्व हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल सॉल्व करेंगे तो डी ई से वो सॉल्व हो जाएगा। वर्टिकल बीई 5√2 है, और हॉरिजॉन्टली एफटीई माइनस एफबी कॉस 45। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास दो आ गए, फिर अब हम किसको सॉल्व करेंगे। अब मैं इसको मिटा दूं या आगे। um, एक सेकंड मैं लिख लेता हूँ, ये जो बेहतर रहेगा। ये सिंपल, हाँ ये आप लिख लें, ये माइनस, ये आपने वर्टिकल कंपोनेंट लिया। हम्म। आप इसकी पिक्चर ले लें, जैसे अब आपको बेटर बेटर लगता है। अब पिक्चर ही ले लेता हूँ, बाद में लिख लूंगा। ये आपने याद भी चलो रखना है, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, इरेज कर लें बी बेशक जी। बी बीई की वैल्यू है 5√2, और डी जी। डी ई की वैल्यू है -5, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ना रिमूव करने से पहले एक और काम करता हूँ। पेन का कलर यहाँ पे कैसे चेंज होता है, अच्छा, तो जो हमें वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू मिलेगी वो हमारा बीई होगा। बीई होगा जी। लेकिन बीई वर्टिकल कंपोनेंट तो नहीं है अब। अच्छा, मैं आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं शायद। ये देखें, ये हमारे पास ना, जब हम इस जॉइंट को अलहदा करेंगे ना, जी। तो ये क्या है भाई, ये कौन सा पेन आ गया है।
मैं अगला पेज करता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखें जब ये हमारा डी था ना, जी। अभी क्या है इसको, ठीक है, देखें ये हमारा ये था ना डी ई। तो हमारे पास हाँ ये था जी। ई, हमेशा रिएक्शन अवे लेते हैं, ठीक है, अवे लेते हैं, अज्यूम हम अवे करते हैं। ठीक है, ये डी ई हम्म। था या ई डी था, इसको ई से डिनोट कर लें क्योंकि हम ई से ले रहे हैं ना, तो ई बी। ठीक है, ये हमारे पास है 45 डिग्री। तो हाँ जी। जब भी हम इस तरह के सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले हम वर्टिकल लेते हैं, ठीक है, वर्टिकल लेते हैं। ठीक है। तो आपने क्या करना है, समीशन ऑफ ऑल द एफ वाई इक्वल टू 0। तो अब देखें, ये तो एक्स एक्सिस पे है, तो ये तो नहीं होगा, तो एफ ई बी का कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन कंपोनेंट, क्योंकि साइन साइन एफ वाई होता है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा ना। तो ये आपको जी समझ आ रही है ना कि साइन क्यों होता है। एक मिनट। जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं रूम में हूँ, मैं जरा आता हूँ, लेक्चर से क्लियर हो फाइनल हो गई। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। तो आपको समझ आ गया ये बात, ये तो आपको पता होगा ना। अच्छा, हाँ जी, समझ आ गई मुझे। वो हाइपोटेनस मिल रहा है हमें, और साइन अपोजिट ओवर हाइपोटेनस है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता ये। आप इसको ना वैसे पता है कैसे याद रखें, आप इसको याद रखें कि एफ वाई जो होता है ना, वो होता है एफ साइन ऑफ थीटा। एफ एक्स होता है ठीक है। एफ कॉज ऑफ थीटा। लेकिन थीटा पे जो आपने ये वाला लेना है, ठीक है, यानी जो एक्स एक्सिस के साथ मिल रहा है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल इसमें थोड़ा सा डिफरेंट भी समझा देता हूँ। देखें एग्जांपल के तौर पे ये ऐसे है, अगर मैं इसको ये देखें, अभी तो ये 45 पे है, तो साइन तो 45 45 भी एक होता है और कॉस 45 भी सेम होता है। लेकिन अगर आपके पास एंगल डिफरेंट है, फिर आपने गलती नहीं करनी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में समझाता हूँ। ये 5 है, ये एफ डी ई है, हम्म। ये एफ ई बी है। लेकिन अब ये एंगल आ गया 30। तो हाँ एफ ई जी। एफ ई बी कैसे निकलेगा, एफ एफ ई बी कैसे निकलेगा, एफ ई बी निकलेगा एफ साइन ऑफ 30 से। ठीक हाँ है, जी। ठीक है। और और एफ डी ई का एफ डी ई कैसे निकलेगा, एफ कॉज ऑफ 30 से। हाँ जी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है एंगल। ये देखें दूसरी तरफ तो एंगल 70 भी बन रहा है, लेकिन आपने जब ये नोटेशन याद रखनी है ना, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ठीक है, ये देन एफ आपने एफ डी ई के लिए हम लोग माइनस नहीं करेंगे एफ ई ये चीज बी माइनस का करेंगे। जो कंपोनेंट है? हाँ माइनस करेंगे, वो मैं आपको ये आगे बताने लगा था क्यों, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है। हाँ जी। तो ये आपको समझ आ गई है। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं इसको अरेज करूं, इसको मैं अरेज करके, सॉरी, अगर मैं इसको अरेज करूं, तो एफ ई बी यानी समीशन ऑफ ऑल द एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो एफ ई बी का कौन सा कंपोनेंट जाएगा, साइन 45। ठीक है, ये ऊपर गया है इस वजह से पॉजिटिव है, और ये 5 नीचे है नेगेटिव में, इस वजह से ये नेगेटिव में गया है। ठीक है, तो अब एफ ई बी कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा, ये 5 उधर जाएगा डिवाइडेड बाय साइन 45। तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। ठीक है, इस बात समझ आ गई है। हाँ जी। और अब हम समीशन ऑफ ऑल द एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे। तो अब ये इधर जा रहा है, तो एफ डी ई यानी ये माइनस में है, और दोबारा ये भी माइनस में जाएगा। ठीक है, एफ ई बी कॉस 45 इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स तो नहीं है ना, जिस तरह यहाँ पे 5 थी। अब आपने क्या करना है, हम्म। यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करनी है, जैसे एफ माइनस एफ डी ई माइनस एफ ई बी की वैल्यू क्या थी, 5 अंडर रूट 2।
हाँ जी। पॉजिटिव थी, तो इस वजह से इधर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। कॉस 45 इक्वल टू 0, तो ये जब 5√2 को कॉस 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। FD -5 इक्वल टू 0, ये माइनस है, तो FDE की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। ये बात समझ आ गई आपको? हम्म, जी। अब आपने क्या करना है कि इसी तरह से सारे मैथ सारे जॉइंट्स को सॉल्व करना है, ठीक है। अब ओके। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमारा ये था ना, जो ये हमारा था ना बीम, सॉरी, ट्रस, ये रिमूव किया था हमने, कौन सा रिमूव किया था, AD। अच्छा, AD रिमूव किया था हाँ ये, जी। एडी रिमूव किया। ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, याद है आपको, -5 या हाँ जी। +5? आई थिंक +5 थी, -5 थी, DE -5 आई थी। -5 आई थी, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव, 5√2। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस जॉइंट को सॉल्व करना है, ठीक है। ये D है, ये C है, ये E है, ये B है। अच्छा, अब देखें, देखें सिंपल सी बात है ना, ये मेंबर 0 होगा। ये मुझे कैसे पता हाँ चला, जी, मैं ये आपको पता चला कि ये 0 क्यों होगा? क्योंकि डी पे कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है। हाँ, तो अब देखें, अगर ये -5 है तो ये भी ऑटोमेटिकली -5 हो जाएगा, CDB, ठीक है। क्योंकि ओके। क्योंकि देखिए हॉरिजॉन्टल इसमें इस पॉइंट पे ना कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स भी तो नहीं लग रही ना, तो जितनी ये होगी उतनी ये जी। हो जाएगी। ओके। ये समझ आ गई आपको? अच्छा, जी। ये हमारा था ये वाला, और ये वाला था ये वाला। अब हम कौन से किसको सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे बी को, हाँ जी। ठीक है। तो बी को सॉल्व करेंगे तो हम बी को कैसे सॉल्व करेंगे, देखें, ये बी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा FAB, ये कितना होगा, FBC, ये तो 0 हो जाएगा, इसको तो लेने की जरूरत नहीं है वैसे। अच्छा, आपने ना जी। ऐसे बना लेना है, ऐसे ऐसे बना लेना है, ताकि आपके लिए इजी हो। तो ये क्या हो जाएगा, FBE। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ना एंगलों में गलती नहीं करनी। एंगल मैंने हमेशा आपको बताया था, आपने एक्स एक्सिस से लेने हैं। तो लेट्स सपोज ठीक ये है। एंगल बन रहा है 45, तो आपने ये एंगल लेना है, यहाँ पे भी ये वाला एंगल लेना है 45 वाला, ठीक है। ठीक है। मेरी बात समझ आ गया? अच्छा, अब जी। यहाँ पर भी आपने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, समीशन ऑफ FY से। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे FY से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, FX से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा मैं? ओके। एफ एक्स में आपके पास दो कंपोनेंट्स, एफ ए बी में भी एक्स कंपोनेंट है और एफ बी सी में भी एक्स कंपोनेंट है। दो अननोन्स हो जाएंगे। दो अननोन हो जाएंगे, तो F ऐसे, ये ठीक है। तो इसी तरह आपने क्या किया, समीशन ऑफ ऑल द FY लगाया, तो ये नीचे जाएगा, ठीक है, -FBC हम्म, sin 45। अच्छा देखिए, FBE की वैल्यू क्या थी, अच्छा ये भी नीचे जाएगा ना, -FBE, BE sin 45, ठीक है। तो ये फिर उधर चला जाएगा, -FBC sin 45 इक्वल टू FBE sin 45, तो ये sin 45 से कट जाएगा। तो सिंपल क्या होगा, FBC की वैल्यू FBE के बराबर होगी, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। ये हम्म, बात समझ आ गया है? अभी चेक जी। भी कर देता हूँ, तो क्या है, BC की वैल्यू, आपको ये बात समझ आ गया है? हाँ जी। ये हम लोग वैसे देख के भी नहीं बता सकते क्योंकि दोनों मतलब ट्रस्ट में सेम एंगल पे हैं। ऐसा ही है, लेंथ भी सेम है। लेंथ, हाँ लेंथ भी सेम। देखिए फोर्सेस की वैल्यू सेम है ना,
ये भी वैल्यू की हाँ बात जी। की, एंगल सेम आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको पता है क्या कहता हूँ, आप इक्वे सॉल्व जब करोगे ना, जब आप सॉल्व करोगे तो जी। ऑटोमेटिकली जब वैल्यूज आएंगी ना, फिर आप खुद चीजों को विजुलाइज बेहतर से कर सकोगे। स्टार्टिंग में आपको विजुलाइज करने हम्म। लग जाए ना, फिर प्रॉब्लम होगी आपके लिए। ओके। ठीक। अच्छा, अब आपने कौन सा सॉल्व करना है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, रेस कर देता हूँ। हम्म। अब आप ये देखें कि अब आपने क्या करना है, समीशन ऑफ ऑल द एफ एक्स लेना है, ठीक है। तो देखिए माइनस एफ ए बी, ये माइनस में जाएगा, ठीक है। हम्म। और अब ये देखें, ये भी माइनस में जाएगा, क्या, एफ बी सी कॉस 45, ठीक है। ये और ये किस में जाएगा, ये एफ बी ई किस में जाएगा, कॉस 45 में जाएगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो, हम्म। माइनस एफ ए बी। तो एफ बी सी की वैल्यू क्या थी, एफ बी सी की वैल्यू थी माइनस फाइव 5 अंडर रूट। स्क्वायर रूट। तो ये पॉजिटिव हो हाँ जाएगा, जी। माइनस माइनस प्लस 5 अंडर रूट 2 कॉस 45। और इसकी हम्म। तो वैल्यू, इसकी वैल्यू बी ई की वैल्यू पहले से पॉजिटिव में थी, तो 5 अंडर रूट 2 कॉस 45। तो 5 अंडर रूट 2 को जब हम कॉस 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 5 आ जाएगा। तो हाँ जी। माइनस एफ ए बी, ये भी +5 प्लस +5 इक्वल टू जीरो। तो एफ ए बी आ जाएगा हमारे पास, ये एफ ए बी उधर चले जाएगा तो +10 आ जाएगा। हाँ जी। ऐसा ही है। जी। और ये वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगी आई थिंक, ठीक है। ये हमारी पास भी जीरो हो जाएगी। कौन सी, ए सी, ए सी हमारे पास हो जाएगा जीरो। AC। जीरो क्यों एक होगा ये, अब सेकंड। आप मुझे बताओगे ए सी क्यों जीरो होगा। AC पे मेंबर है। अच्छा, इन्होंने ए सी को मेंबर ही नहीं लिया, ठीक है, या तो आप हाँ, AC मेंबर, पे मेंबर ही नहीं है। इन्होंने एसी को मेंबर ही नहीं लिया। अच्छा, वैसे अगर ये पेपर में आ जाता तो आपको, मुझे कैसे पता चला कि ये जीरो होगा। एक सेकंड, अच्छा कैसे पता चला भी जीरो होगा? -5 -2 पता नहीं। ये देखो, ये ये आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल है ना। हाँ जी। तो जब रिएक्शन वर्टिकल आ ही नहीं रहा, तो फिर ये जीरो हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। लेकिन ये जो इसका BC है, इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा? नहीं, इसका तो होगा ना, आप जॉइंट को देखो ना, आप जॉइंट को, जैसे आप इस जॉइंट को देख रहे थे, अब इस जॉइंट को देखो ना। हम्म। इस जॉइंट पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो है ना, जो कि हाँ जिसकी जी। वजह से 10 आया। लेकिन रिएक्शन हम्म। वर्टिकल नहीं है, क्योंकि ये सपोर्ट ही नहीं कर सकता ना वर्टिकल को, तो फिर ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। ओके, हाँ हाँ। ठीक हो ठीक है। गया। अच्छा, हाँ जी। अब आप ये भी यहाँ से ये भी देख सकते हो कि जब आप इसके रिएक्शंस निकालोगे ना, तो ये रिएक्शन आपके पास होगा ऐसे, ए बी की वैल्यू 10 होगी, ऐसे होगी हम्म। वैल्यू 10, ऐसे होगी 5। ठीक है, बहरहाल इसको छोड़ देता हूँ, मैं इसकी तरफ नहीं जाता। अच्छा, अब आप ना एक थोड़ा सा ना, मैं आपको एक दो चेक्स बता देता हूँ, ये आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखिए, ये तो आपको समझ आ गई कि, हम्म। अच्छा आपको ना एक मतलब देखने से कैसे पता चलेगा कि यार मुझे लगता है, अच्छा इसमें ना याद रखिएगा एक बात, इसमें अगर आपकी एक साइन गलत होगी ना, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पे अगर इसको माइनस कर दिया था, इसको भी माइनस कर देते, तो भाई इसकी वजह से आपका हम्म। ये भी गलत हो जाता, इसकी वजह से ये भी गलत हो जाता। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मेरी साइंस ठीक है या नहीं, ठीक है, उसका मैं आपको एक तरीका कार बता देता हूँ।
Okay. ये देखें, तो मैं अरेज करता हूँ। अच्छा, याद रखिएगा, जो ट्रस है ना, वो बीम की तरह बिहेव करती है। ठीक है। Mhm. लेट मी, इसको हम ऐसे कर लें, देखें। देखिए, अगर मैं इस ट्रस को ना बीम बना दूं, ठीक है, इस ट्रस को मैं बीम बना दूं, तो ये तकरीबन ऐसे बनेगी ना। यानी ये ऐसे थी, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, और यहाँ पे लोड लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही है ना। Mhm. मतलब यहाँ से ये फिक्स जी। हुआ हुआ है। अब देखिए, ये कैंटिलीवर बीम है। तो जब कैंटिलीवर बीम Mhm. के ऊपर ऐसे लोड लगता है ना, तो वो ऐसे 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 झुकती है। मतलब ऐसे उसके अंदर ऐसे डिफ्लेक्शन आती है। और जब ऐसे डिफ्लेक्शन आती है ना, तो उसके टॉप पे ना टेंशन आती है, उसके बॉटम पे कंप्रेशन आती है। मेरी बात समझ आ रही है? जी। ठीक है। अब देखिए, टेंशन क्या होती है? पॉजिटिव। कंप्रेशन क्या होती है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब आपके रिएक्शंस ठीक है, साइन भी ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी यही तो ट्रस होती है मसलन ऐसे। बेसिकली हम जो समझते हैं भाई, जो मेंबर कंप्रेशन में होगा हाँ हाँ वो हाँ। नेगेटिव होना चाहिए, और जो मेंबर टेंशन में होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। जी। अब ओके। देखिए, मैं अगर इसी लेकिन जी जी, आप पूछें। हमें एक चीज बताइए भी, अगर हमारे बेसिकली हम नेगेटिव लेते हैं, हमारा आंसर नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, जो भी है, अगर नेगेटिव है तो हम बस उसकी फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। वो वो पता है क्या सपोज। जी जी, आप पूछें। जी। नहीं नहीं, बोले आप। वो बेसिकली जो वो वाला तरीकाकार है, उससे बहुत आपको प्रॉब्लम होगी कि नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको कंफ्यूजन बहुत होता है जी। कंफ्यूजन बहुत होती है। तो जो मैंने आपको हम्म। तरीकाकार बताया ना, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी है, वरना हम्म। मुश्किल हो जाता है। आप देखिए, मैं आपको ये बताने लगा था कि अब आपके पास यही एग्जाम्पल होती ऐसे, और यहाँ पे लोड लग रहा होता, और आपके पास वैल्यूज ऐसी होती -5, -5, 500√2, 500 या 10। तो आपको लगता है ये आंसर आपका ठीक था? तब आपके आंसर्स गलत थे। पता है क्यों? आप देखें, अब आप इसको ना, इसको बीम बना दें, हम्म। और तो ये ये जो लोड बॉटम लगा दें। वाले मेंबर्स हैं ये टेंशन में होना चाहिए। बॉटम वाले टेंशन में आने चाहिए, ऊपर कंप्रेशन आते हैं। ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। बिल्कुल। ओके। ठीक है। तो ये आपने इस तरह थोड़ा सा ना, जब ट्रस्ट को सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें आपने ये थोड़ी सी चीजें एट द एंड देख लेनी है। बाकी आपने कैलकुलेशंस ठीक की होंगी तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेंबर्स इंटेंशन पॉजिटिव, हम्म। कंप्रेशन नेगेटिव। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इस सॉल्व को, ये तो आपका सॉल्व हो गया। ठीक है। मतलब आपके पास क्या नाम है, यहाँ पे यहाँ तक तो ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है। हाँ जी। अब आपने एक करना क्या है कि ये वैल्यूज को याद रखना। ठीक है, जैसे ये रखा हुआ है -5 √2, ये +10 होगा, ये सारी वैल्यूज होगी हैं। ठीक है। अब आपने करना ये है कि इसको मैं रिमूव, अगले पेज पे आता हूँ। ठीक है, ये आपने इसकी पिक्चर ले लिया है? पिक्चर ले लेंगे तो आप। पिक्चर भी ले लेता हूँ, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है हाँ, ना। मीटिंग रिकॉर्ड हो गई है जी। मीटिंग रिकॉर्ड हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। अब आपको याद होगा, तो हमने बेसिकली क्लास ऐसे थी। ठीक है, ऐसे थी, ऐसे थी ना। कौन सा रिमूव किया था? AD। तो ये ऐसी थी हमारी हाँ ट्रैक। जी। तो आपको याद होगा, तो हमने बेसिकली इसको रिमूव किया था, इसको रिमूव किया था। तो जहां हमने रिमूव किया था ना, ये यहाँ पे हमने 1 की फोर्स लगा देनी है, ऐसे भी और ऐसे भी, 1 kN की। ओके। और जब हम 1 kN की फोर्स लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे? अगेन सारी वैल्यूज अगेन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, A, B, C, D, E।
तो अगर हम देखें, जो स्टार्ट करें डी से, ई से, तो देखें ई पे तो कोई फोर्स नहीं है, तो ये भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे? सिंपल, अपनी डी से। ये बात समझ आ रही है? तो अब बहुत सिंपल जी है। तो ये देखें डी है, तो ये आपके पास आ जाएगा डी बी, डी बी। ये आपके पास आ जाएगा एफ सी डी। ये आपके पास आ जाएगा 1। ये आ जाएगा 45। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? समीशन ऑफ ऑल द एफ वाई लगाएंगे, तो ये 1 ऊपर जाएगा, प्लस एफ डी डी बी साइन 45 इक्वल टू 0। तो एफ डी डी बी कितना हो जाएगा? -1 डिवाइडेड बाय साइन 45। तो ये कितना होता है? -1 डिवाइडेड बाय साइन फोर्टी फोर्टी फाइव फाइव -√2। ठीक है, तो जब आप, जी तो अब इधर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, डी डी बी -2। ठीक है, अब मैं इसी का लेता हूँ, सॉरी, इसी का मैं लेता हूँ माइनस समीशन ऑल द एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो माइनस एफ सी डी -1 कॉस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस एफ सी डी, तो ये -1 √, अब इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपल, 1 cos 45। तो ये बन जाएगा -√2 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो एफ सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? फिर ये एक ही माइनस था, तो एफ सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -√2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया? तो ये जी हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू एफ सी डी की। ये आपको बात समझ आ गई? अब देखें, ये भी वैल्यू आ गई -√2, इसकी वैल्यू भी आ गई -√2 डिवाइडेड बाय √2। अब आपके पास इस इस वैल्यू के थ्रू आप क्या करेंगे? ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मतलब ये आपके पास ज्वाइंट सी आ जाएगा ना। ठीक है, इस ज्वाइंट की मदद से आप ये ज्वाइंट कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, और फिर ये आपके पास होगा, और इसकी मदद से आप ये सॉल्व कर लोगे। तो आपके पास आई थिंक ये सब की वैल्यूज आ जाएंगी, 1, किसी की 1, किसी की √2, किसी की 1 √2। ठीक है, समझ आ गई आपको बात? ये एग्जाम्पल में बी डी का इन्हें सेम मिला है 1/√2 या फिर बी डी का ना, √2 सी डी ओवर का? टू सी डी की वैल्यू बी कितनी डी है? का बी, बी डी की वैल्यू इन्हें मिली है -1/√2। ठीक है, और हमारी क्या आ रही थी? हमारी भी इतनी आ रही थी ना? हमारी हमारी √2 आ रही थी बस। नहीं नहीं, आप वो शायद मैंने इधर गलत लिख दिया, इधर इतनी आ रही थी। मैं आपको, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इसको देखें यार, एक मिनट, ये देखें, समीशन ऑफ ऑल द एफ वाई इक्वल टू 0 किया। ठीक है, हाँ जी तो आपके पास क्या आ रहा है? ये ऐसे ज्वाइंट बन रहा है ना, ये ज्वाइंट बन रहा है। तो 1 sin 45 प्लस एफ बी डी इक्वल टू 0। तो 1 sin 45 कितना आ जाएगा? √2, √2/2। हाँ जी √2/2 प्लस एफ बी डी हाँ इक्वल टू 0। तो जब ये उधर जाएगा तो एफ बी डी की वैल्यू हो जाएगी -√2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अच्छा, ये आप उसको समझ रहे हैं कि मैं आपको बताता हूँ, ये ना, इसकी भी ये इसके बराबर है, -1 हाँ अगर वन ओवर √2 है। रूट टू हाँ वो सेम है पता है मुझे जी। ठीक है,
तो ये इस तरह से कैलकुलेट हुआ है। और इसी तरह जब आप इसके मदद से ये कैलकुलेट करोगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये बेसिकली ये चारों वैल्यूज आप एक बार हाथों से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। इतनी कोई मुश्किल नहीं चीज हाँ नहीं है जी। चीज। ठीक है, जिस तरह ये है इसी तरह फिर आप ये कैलकुलेट कर लोगे, ये तो सिंपल है। और फिर ये भी इस तरह कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास ये बेसिकली चार, एक, दो, तीन, चार, इस तरह आपके पास चार डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। हम्म। ठीक है। तो अब आप क्या होगा, अब हम इसके इसके नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट पे चले जाएंगे। ठीक है। तो अब आप इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाओगे, देन आपने क्या करना है कि जस्ट मिनट, मुझे रोटी वाला वो किचन में पड़ा हो जाएगा। ठीक है, आई एम जस्ट कमिंग इन 10 10 मिनट्स। ओके। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सिंपल सा चार्ट बनाना है। ठीक है, उस चार्ट को मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, मेंबर्स की डिटेल्स लिखनी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास मेंबर्स थे, तो अब आपके पास मेंबर्स आ गए जैसे ए बी। ठीक है। बी डी, ये मैं ज़रा उसमें से ही देख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बार बार वहाँ से क्या हम्म। देखो, सी डी, ए डी, बी सी, ये डी। टेबल वाला रहने दे बेशक, ये मसला नहीं आता मुझे। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज टेबल में लिखनी है बस। हाँ, ये मैं आपको वैसे एक बार रिटर्न ओरल में ही बता देता हूँ। सबसे पहले आपने मेंबर्स लिखे। ठीक है। फिर आपने बेसिकली ये जो स्मॉलर एन की वैल्यू होती है ना, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल फोर्सेस। ठीक है क्या, वर्चुअल ठीक है। फोर्सेस। तो वर्चुअल फोर्सेस की वैल्यू डाली जैसे अंडर रूट 2, 1 अंडर रूट 2, ये जितनी भी वैल्यूज। और ये जो बड़ा एन होता है इसको हम बोलते हैं रियल फोर्सेस। ठीक हो गया। ये रियल ठीक फोर्सेस, हो गया। आपने रियल फोर्सेस की वैल्यू डाल दी सारी। फिर आपने क्या किया, इन दोनों को, और यहाँ पर फिर आपने लेंथ की वैल्यू, मतलब यहाँ पे लेंथ डालनी है। ठीक है। इन्होंने आई थिंक जो तीसरा स्टेप किया हुआ है ना, उसमें उन्होंने लेंथ नहीं डाली हुई, ए ई और एल। ठीक है हाँ वो सारी उन्होंने एक साथ ही कर ली है। जी। तो यहाँ पे जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है, स्मॉलर एन, लार्जर एन, और ये एन, ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो आपके पास इस तरह वैल्यूज आ जाने आने लग जाएंगी। एट द एंड आपने इसको क्या करना है, सम कर देना है। और जो आप जब आप इसको सम करेंगे, ठीक है, और ये वाली जो वैल्यूज होंगी आप इस पे इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये बेसिकली इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो आपने रिडंडेंट किया ना, रिमूव, जो सबसे पहले आपने हम्म। स्ट्रक्चर रिमूव किया था उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी। ठीक तो हो गया। हाँ, जब आपके पास वो एक वैल्यू आ जाएगी तो ठीक है, वैसे नॉर्मली क्वेश्चन यहीं तक होता है, लेकिन अगर वो कहते हैं सब पे करो, जिसना इसने ना भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखें, जब आपके पास ए डी की वैल्यू आ जाएगी, जैसे 3.03 ए डी की वैल्यू आ गई, जब आपके पास एक हम्म। वैल्यू आ गई फिर तो आप सारे की कैलकुलेट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये मसला तो आपके पास एक का था, क्योंकि ये इंडिटरमिनेट था। जिस तरह अभी बिल्कुल। जब आपके पास ये ए डी, ठीक है, ये ए डी की वैल्यू जब आ जाएगी 3.03, तो फिर इसी तरह आप बाकियों की भी इजीली कैलकुलेट कर लोगे। ओके। तो आम, ये- आप अगर एक सेकंड के लिए ये पहली एग्जांपल देखते हैं, इसमें इन्होंने दो टेबल बनाए हैं। अच्छा, मैं दो देख, अलग अलग टेबल। वो ना आई थिंक स्ट्रक्चर 2 इंडिटरमिनेट होगा। हाँ, इसमें देखें ना आपको नहीं, अच्छा ये देखें, इसका ना मैं आपको शॉर्ट तरीका कार बता देता हूँ कि ये इसने क्या किया हुआ है। हम्म। एक मिनट। अच्छा, इसने रिमूव कौन सा किया है, इसने रिमूव किया है एक्चुअल स्ट्रक्चर, रिलीज स्ट्रक्चर रिस्टोरिंग एफ बी सी। ठीक है, इसने बी सी रिमूव कर दिया। ठीक है, वैसे ये रिमूव ना भी करता तो, अच्छा वैसे अगर आप इस क्वेश्चन को ना इस तरह भी सॉल्व करोगे ना, इस तरह भी सॉल्व हो जाएगा। एक मिनट में को बताता हूँ, देखें, जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसने ऐसे हम्म। किया हुआ है।
अब देखिए, सबसे पहले तो आपने ये एनालाइज करना है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपके पास 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, तो ये 1 डिग्री होगा, ठीक है। आप इसमें इस फार्मूले में वैल्यूज डाल के देख सकते हैं। अब आप ये, लेट्स सपोज आपके पास पी ये है, ठीक है। आप ये हम्म। वाला भी रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला रिमूव करेंगे ना, ठीक है, तो ये आपके लिए ज्यादा इजी होगा। ये आपने इसको, हाँ, लेकिन वो क्वेश्चन क्वेश्चन का पार्ट अभी आपने रिमूव BC करना है। ठीक है, आपको आपके पास ये पी वैल्यू आ जाएगी, इसकी मदद से आप ये दोनों कैलकुलेट कर लोगे, फिर ये कैलकुलेट कर लोगे, ये कैलकुलेट कर लोगे। और हम्म। मैं आई थिंक जब आप ये वाला रिमूव करोगे ना, ये वाला मेंबर, तो ये ज्यादा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। हाँ। अम, ये मुझे समझ आ गया, अभी आपने मेंबर्स रिमूव करने हैं और मतलब मेथड और ऑफ चॉइस वगैरह लेके करना है। लेकिन जी, मुझे ये समझ नहीं, ये दो टेबल्स किस बारे में है? इसने ना दो मैं टेबल्स क्यों यूज हो? इसने ना एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर का अपना डिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम्म। जब ये आप रिमूव करोगे ना, तो एक स्ट्रक्चर में अपनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है और एक एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है, वो इसने दोनों को ना ऐड किया हुआ है। मतलब इसने दो ओके। डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट की हुई हैं। हमने इस सेकंड एग्जांपल में क्यों नहीं किया, जो क्वेश्चन हमने वो किया उसमें ये क्यों वो नहीं मैंने है? आपको बताया ना, जिस तरह इसने जो इसने मेंबर्स रिमूव किए हैं ना, जिस तरह इसने मेंबर्स रिमूव किए हैं, तो वो उस हम्म। लिहाज से इसमें दो टेबल्स बनेंगे। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ना इस जिस तरह का ये, फॉर एग्जांपल जब ट्रसेस इस तरह की होती है ना, नॉर्मली इस तरह की ट्रसेस होती हैं, ठीक है, हम्म। तो उनको सॉल्व करना ज्यादा इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखें, अगर आप मैंने ये रिमूव किया तो ये इस तरह, तो ये आपके पास आई थिंक ये मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि अगर आप इस मैथड, क्योंकि देखिए पेपर में तो आप कोई भी मेथड इस्तेमाल, मतलब मैथ आप कोई भी रिमूव कर सकते हैं, वो तो आपकी अपनी हम्म। कंपेटेबिलिटी है ना। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको इस तरह रिमूव करके देखो और फिर सॉल्व करो। हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, डायगोनल आप रिमूव करेंगे तो इजी हो जाएगा। आपके लिए बहुत ज्यादा इजीली हो जाएगा। हाँ। तो वो मैंने आपको बताया ना, जिस तरह उसने मेंबर रिमूव किए हैं ना, उस तरह से फिर दो डिफ्लेक्शन कैलकुलेट हो रही हैं, क्योंकि वहां पे दो किस्म की डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही हैं। क्योंकि जब आप ये वाला रिमूव कर रहे हो मेंबर, तो स्ट्रक्चर यहाँ से डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इस वजह से तो मैंने आपको बताया कि स्टेबिलिटी आप इस तरह से लो कि आपका स्ट्रक्चर इस तरह का कोई बने, इस तरह का, इस हम्म। तरह का, इस तरह का, ताकि आपके लिए थोड़ा सा ना इजी हो चीजें कैलकुलेट करना। हम्म। तो मैं आपको एक ये एडवाइस करता हूँ कि अगर आप इसको इस तरह से लेकर चलोगे ना, तो ज्यादा इजी होगा। लेकिन आपको, अगर आपने इसको इसी तरह ही देखना है, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा मजीद देख लेता हूँ कि इसको किस तरह से आपको शॉर्ट तरीके से बता सकूँ, या उस हाँ दो चल। टेबल को एक के अंदर ही मर्ज करके देखो। हम्म। और जो हमने एग्जांपल किया है इसका भी टेबल है, इसमें भी दो कॉलम्स हैं, एन यानी वर्चुअल वाला तो रियल फोर्सेस। हम्म, फिर सेकंड कॉलम में दोनों वर्चुअल मल्टीप्लाई हो रही हैं, जी ये जी, कौन सी इक्वेशन है? मैंने आपको यही बताया ना कि देखें, उसने ना पता है क्या किया, इस क्वेश्चन में ना दोनों टेबल्स को मर्ज कर दिया, और उसने क्या किया, ओके। पिछले टेबल में दोनों को वैल्यूज को अलग अलग लिया। ये ओके। बात समझ रहे हैं? देखें, पहले, सॉरी, पहले में आ गया मेंबर्स, ठीक है, दूसरे में आ गया आपके पास एन, एन छोटा। देखिए, आप ऊपर वाले को देखें जी। ना, ऊपर वाले को देखें तो नीचे वाले को देखें, उसमें फर्क यह है कि एक टेबल में छोटे एन को से उसने सारा कैलकुलेट किया, प्लस कर दिया है। हम्म। दूसरे क्वेश्चन में उसने बड़ा एन लिया, सबको ऐड पे टेबल बना दिया, फिर उनको ऐड किया है। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें उसने मतलब दोनों टेबल को मर्ज किया हुआ है, क्योंकि चेंज तो दोनों एन नहीं होने हैं ना। मेरी बात समझ आ हम्म। रही है आपको? देखें, फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, इस फार्मूले को याद रखो, छोड़ो, मैं आपको सिंपल में शॉर्ट बताता हूँ। एक फार्मूला है छोटा एन, छोटा एन एल डिवाइडेड बाई ए। हम्म। एक फार्मूला है बड़ा एन, छोटा एन एल डिवाइडेड बाई ए। इन सब का समीशन, इन सब का समीशन, मतलब इस सब का समीशन आ गया 10, इस सब का समीशन आ गया 2, हम्म। तो इस 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है। ओके। पहले क्वेश्चन में उसने क्या किया, उसने क्या किया, मेंबर्स लिए, लेंथ लिया,
छोटा एन लिया, फिर छोटा एन लिया, मल्टीप्लाई कर दिया जी, एन, एन, एल, ठीक है। यहाँ से इसके हम्म। बाद वैल्यूज आ गई। ये एक टेबल है, देखें आप और से दोबारा। दूसरा टेबल क्या किया, यही मेंबर्स हैं, यही एल है, एक बड़ा एन है एक छोटा एन है, बड़ा एन छोटा एन मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास अ, ठीक है, आपको समझ आ गया है। हाँ जी, ठीक है। तो अब यहीं पे लेक्चर्स को ख़त्म करते हैं। तो बहरहाल मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसको मेरे तरीके से सॉल्व करके देखिएगा, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। हाँ, मैं ट्राई करता हूँ। अगर ये रिकॉर्डिंग आपके पास है तो ये रिकॉर्डिंग सेंड कर दे। इसको और टाइम लगेगा, मुझे इसको अब यूट्यूब पे अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना इतनी हैवी जीपी है, या हाँ इसमें सेंड नहीं हो सकेगी। हाँ, चलो ठीक है। वो कर लें आप, अगर जब भी आपके पास टाइम लगता है। और मुझे ये बाकी के 3 टॉपिक्स हैं, ये कल तक खत्म करने हैं सारे। चले, मैं आप 4-5 घंटे तक फ्री होके ना आपको बताता हूँ, फिर हम हम्म। सिलेक्शन मेथड को भी देख लेंगे। हाँ चलें, ठीक है, ओके। चले ठीक है, ये आप ये फोर्स मेथड क्लियर हो गया ट्रस्ट के लिए। हाँ, मैं थोड़ी प्रैक्टिस करता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन हुआ फिर मैं आपसे पूछ लूंगा दूसरी मीटिंग में। ठीक है। ओके जी, अल्लाह, शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।